Hello students, in class 9, today we will start a new chapter called Atoms and Molecules. In previous days we already studied about two chapters. First one was matter in our surrounding and second one was is matter around us pure. So we have studied two chapters. Now we are going to the next level, which is atoms and molecules. So what is atom? Basically, atom we have studied that is the smallest entity of any element from which any element is made up of, and molecule is the smallest entity of any substance, and all the substance are basically made up of these molecules. Now we will study different types of laws, how these atoms and molecules form, and these atoms are combining together following these rules, and the molecules are formed the chemical combination of atoms, how it is takes place. So these matter is made up of small particles called atoms and molecules, and different kind of atoms and molecules have different properties. For example, if we are taking two substances, like we have taken water, we have taken carbon dioxide. If we are taking carbon dioxide, it is a gas, and if we are taking carbon dioxide water, it is a liquid. So carbon dioxide and water are two different substances, two different compounds, two different molecules, and they are also made up of different kind of atoms also. If we are taking an example of carbon dioxide, so it is made up of carbon and oxygen. But if we are taking an example of water, it is made up of hydrogen and oxygen. So both the compounds or both the substance are different. That's why they are made up of different kind of molecules as well as atoms. Now we will study different laws of chemical combination, कि किस तरीके से ये एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, बिकॉज एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर जिसको हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं. ओके, सो देयर आर टू डिफरेंट laws of chemical combination we will study. First one is called law of conservation of mass, and this law was given by Lavoisier in 1774. And what he said in this law, whenever a chemical combination takes place, there will be no change in the mass. It means total mass जो हमने reaction में पहले लिया था और after the reaction it will remain same. Suppose this one is a chemical reaction in which A and B, which are written on the left hand side of arrow, these are the reactants, and the things which are written over there, it means on the right hand side of any arrow of in a chemical reaction, it is called products. तो हमेशा जो reactants होते हैं वो substance होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और राइट हैंड साइड पे हमने यहाँ प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं. एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में बनते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं. सो यहाँ ए और बी होंगे रिएक्टेंट्स और सी और डी यहाँ पे कहे जाएंगे प्रोडक्ट्स. ठीक है, मान लीजिए सपोज वी हैव टेकन ए ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए. इट मीन्स हमने ए सब्सटेंस को माना है जिसका हमने ए ग्राम, स्मॉल ए ग्राम, हमने उसका वेट बाय वेट उसको वे करके और उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया. ओके, नाउ वी हैव टेकन बी ग्राम ऑफ सब्सटेंस बी. दूसरा जो सब्सटेंस हमने यहाँ रिएक्टेंट देखा वो बी है, और उसका स्मॉल बी ग्राम हमने इस रिएक्शन में रिएक्ट करने के लिए उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया. दोनों ने रिएक्ट किया, दोनों ने रिएक्ट करके सी और डी बनाए जिनका कुछ कुछ मास बना होगा. मान लीजिए सी का सी ग्राम बना और डी का स्मॉल डी ग्राम बना. दीज आर द मासेस. ये रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट के फॉर्मूले हैं ए और बी, और ये स्मॉल ए और स्मॉल बी कहे जाएंगे इनके मासेस. इसी तरीके से कैपिटल सी और कैपिटल डी यहाँ पे हो गए प्रोडक्ट्स. ठीक है, और स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर द वेट इन ग्राम्स जो कि बने हैं रिएक्शन के अंदर. अगर हम यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं, सो अकॉर्डिंग टू विच टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास अगर बराबर होगा तभी हम कहेंगे कि मास का कंजर्वेशन हो रहा है. इट मीन्स नो मास इज वेस्टेड हियर. ओके, सो दैट्स व्हाई A प्लस B जो कि रिएक्टेंट का टोटल मास था, इट शुड बी इक्वल टू C प्लस D विच इज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. सो दिस वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल ये है कि यहाँ हमने कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन या मार्बल, ये फॉर्मूला है लाइमस्टोन का कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया, हमने गर्म किया इसको. यहाँ हमने इसका जो वेट लिया था वो 100 ग्राम लिया था, 100 ग्राम्स लिया था. जब आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं. फर्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्साइड which is called quicklime, and second one is carbon dioxide gas which will be evolved in the atmosphere. ये बन जाएगा. ठीक है. अब एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं लैब में, बाय डिफॉल्ट 100 ग्राम अगर आपने ये लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ 56 ग्राम बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम इसको प्लस करें सो द टोटल विल बी रिमेन 100 ग्राम. इट मीन्स एक्सपेरिमेंटल भी ये प्रूफ हो चुका है कि अगर हम आइडियल कंडीशंस ले लें तो यहाँ कहीं भी मास का लॉस नहीं हो रहा है. इट मीन्स द टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड और रिमेन्स सेम. तो यहाँ ये हर कोई इक्वेशन, चाहे वो कोई भी इक्वेशन या कोई भी केमिकल चेंज हो रहा होता है नेचर में, तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता ही लगता है. इट इज मैंडेटरी. नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट लॉ जो है विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय प्राउस्ट इन 1779. क्या कहा था उन्होंने? अकॉर्डिंग टू हिज लॉ व्हाट इज सेड कि इफ द सेम एलिमेंट इज कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, in their chemical combination, it means they are always combining in a fixed ratio, fixed proportion or the constant proportion. For example, यहाँ हमने water का example लिया है. Water is a combination of hydrogen and oxygen. और वाटर जो है आप किसी भी सोर्स से ले लीजिए चाहे. ठीक है. अगर हमने बाय मास इसका रेशियो निकाला तो बाय मास इसका रेशियो हमेशा 1:8 ही आता है. इट मीन्स हमेशा 1 पार्ट बाय वेट हाइड्रोजन, इट विल ऑलवेज रिएक्ट विद 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन. चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो वेल वाटर हो, या कहीं से भी आपने पानी का सोर्स, किसी भी सोर्स से आपने पानी लिया है, द फॉर्मूला विल रिमेन H2O. और अगर इसका फॉर्मूला सेम है तो इनका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो भी हमेशा सेम ही रहेगा, विच इज ऑलवेज 1:8 by mass. So this one is law of constant proportion. ठीक है. इस तरीके से हम अदर एग्जांपल्स लेके भी इसको समझा सकते हैं. बाय मास हम इसका रेशियो निकाल के देख सकते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर हम मास देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो आता है इट इज 3:8. तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, चाहे वो कार्बन के बर्न होने से बने या फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तब बने या किसी भी अदर रिएक्शन से बने, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो होगा इट विल ऑलवेज बी 3:8, which is always proved. It proves the law of constant proportion. नेक्स्ट हम आ जाते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे. ही वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने पहला अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिन्होंने ये बताया था. इट वाज प्रपोज्ड बाय in 1808 and this atomic theory has many assumptions, जो कि उन्होंने सारी चीजें बताई थी कि किस तरीके से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है. तो पहला पॉइंट इसका था कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. और एटम्स जो है दीज आर कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इनको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, विच इज रिटन ओवर देयर इन थर्ड पॉइंट ऑल्सो. एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है केमिकल कॉम्बिनेशन में एक रूल पढ़ा था विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग हमने यही पढ़ा था कि मास हमेशा कंजर्व रहता है.
और यहाँ पे डाल्टन ने बताया कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट मीन्स जितने एटम आपने रिएक्शन में लिए थे उतने ही एटम्स आपको रिएक्शन के बाद भी मिल जाएंगे। जब रिएक्शन हो जाएगी आपको नंबर ऑफ एटम्स जो है इट विल रिमेन सेम। तो जब नंबर ऑफ एटम्स भी सेम रहेंगे तो क्या होगा, जितने आपने एटम्स रिएक्शन से पहले लिए उतने ही एटम्स रिएक्शन के बाद होंगे। इसका मतलब हुआ कि टोटल जो मास है एटम्स का वो भी कंजर्व है, ना तो कोई एटम बढ़ा है ना ही घटा है। इसका मतलब कि मास कंजर्व है, मीन्स इट शोज द कंजर्वेशन ऑफ मास आल्सो। नेक्स्ट है एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। हर एक एलिमेंट के अंदर का जो एटम होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वही प्रॉपर्टीज उसके एटम्स की भी होती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन के जितने भी एटम्स हैं, या अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर के जितने भी एटम्स हैं, हाइड्रोजन की बात करें हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं, तो उन सबका मास सेम होगा। तो हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो उसके सारे एटम्स का मास 1 होना चाहिए। उनका साइज भी सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, ऐसा उन्होंने बोला था, जो कि बाद में ही पोस्टुलेट उनका फॉलो नहीं हुआ क्योंकि बाद में डिस्कवरी हो गई आइसोटोप्स की। Then he said atoms of the different elements differ in mass, size and chemical properties. Yes, ये उन्होंने सही कहा कि अगर हम आयरन ले रहे हैं और हम कॉपर ले रहे हैं, कंपैरिजन करो तो दोनों का मास अलग होगा, दोनों का साइज अलग होगा और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ठीक है। नाउ द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 or more elements consisting of joining together the atoms of the chemical elements to form the molecule of compound. ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का, उसके बाद क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं कंपाउंड्स के। व्हाट इन दिस पॉइंट ही सेड एंड द नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड इज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड। हमेशा जब भी कंपाउंड बनते हैं तो उसके अंदर जितना भी कॉम्बिनेशन हो रहा है एलिमेंट्स का, एटम्स का, वो फिक्स है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रही है तो उसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही लगेंगे, इससे ज्यादा भी नहीं लग सकते, इससे कम भी नहीं लग सकते। वाटर बन रहा है तो H2O है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इट मीन्स जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो जो रेशियो होगा एलिमेंट्स का इट विल ऑलवेज बी फिक्स एंड इन अ होल नंबर, फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्योंकि एटम्स कभी आधा तो कंबाइन नहीं करेगा ना, या तो मल्टीपल्स में करेगा या सिंगल करेगा। जैसे कार्बन के अंदर कार्बन का 1 है तो ऑक्सीजन के 2 है, तो मल्टीपल फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि हाफ हो जाए, तो वो नहीं होगा। एंड दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑल्सो। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन रेशियो टू फॉर्म मोर देन कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस स्टेटमेंट को समझना चाहें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है। इसी तरीके से अगर एक और कंपाउंड हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन का तो वो CO भी बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। तो क्या है, अलग रेशियो हो जाएगा ना। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 का रेशियो देखें तो वो 3:8 बन जाता है, लेकिन अगर हम वही रेशियो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें तो इट इज 3:4। तो ये क्या है, डिफरेंट है। तो यही इस स्टेटमेंट को समझाया जा रहा है कि अगर कंपाउंड डिफरेंट है तो ये रेशियो भी डिफरेंट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विच इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी कि कौन सा पोस्टुलेट है। इट विल शो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही उनको लॉस किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि कैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। तब उन्होंने ये कहा था कि एटम्स जो हैं किसी भी कंपाउंड में हमेशा फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड होल नंबर में ही कंबाइन करते हैं। तो ये जो है इट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अभी तक हमने लॉज पढ़ लिए हैं और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट
the molecular formula or the molecular mass, molar mass, mole concept. Okay, I hope you understand this video, and